हेलो एवरीवन। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? बढ़िया हो? सब सही जा रहे है ना? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਐਂਡ ਹੈਲੋ ਐਰੀਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਿਆ ਜੇ ਹਨਾ। ਚਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਲੋ ਐਰੀਨਸ। हेलो एरीन्स दी प्रिपरेशन। तो नंबर वन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक मिनट, हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना कि बेंजीन दे ऊपर CH3 प्रेजेंट है, नाल X2 लगा देंगे, आयरन डार्क दी प्रेजेंस CH3 इधर X प्लस CH3 इधर X ऑर्थो दे पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अपने कुल हेलोवेरिन तैयार हो जाएगा। और कोई? सर सैंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, अमाइंस तो बनता है फ्रॉम अमाइंस। रिएक्शन का नाम की है जी सैंड मेयर्स रिएक्शन। नेम रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है। बेंजीन के ऊपर NH3 10H2 सर 3 NaNO2 प्लस HCl 223 तो 278 केल्विन। ठीक है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट्स बनता है। पहली डायजोटाइजेशन रिएक्शन, उस तो बाद अगली वाली जी इस तो बाद होएगी। ठीक है, Cu2X2 X ऊपर आ जाएगा। अगली वाली अपने को सैंड मेयर रिएक्शन है। पहली वाली डायजोटाइजेशन है, अगली वाली सैंड मेयर रिएक्शन। क्लियर? देखो बेंजीन के ऊपर हेलोजन आ गए, हेलोरीन तैयार हो गए। ठीक है, उस तो बाद कह रहे हैं भी जेकर आप आयोडीन लेके आना। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन ठीक तरह बनाया जाए। जेकर आप आयोडीन लेके आना तो पोटाशियम ना सिंपली शेकिंग कर दो, कोई टेंपरेचर वगैरह की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, रिएक्टिव ज्यादा हो जाता है, सिंपली बाय शेकिंग रिएक्शन हो जाती है। बेंजीन के ऊपर आई लग जाता है, N2Cl बाहर हो गई। गल समझ आई सब? क्लियर है? तो आप हैलो एरीन्स की प्रिपरेशन दो देखें। ठीक है, क्लियर हुई गल? उस तो बाद आप अगला देखते हैं। अगले दे विच पॉइंट बनूगा फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्हां दी। ठीक है, फिजिकल कर देंगे, केमिकल कर देंगे। ठीक है ना? सही गल है, बड़िया सिंपल सिंपल होणगियां। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप कर चुके हैं। फिर SN1 SN2 करांगे। ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहिंदा है। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲੋ ਅਰੀਨਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਨਵਰਜਨਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ। ਕੱਲੀ ਥਿਉਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਨਵਰਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਕਲਰਲੈਸ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ? ਕਲਰਲੈਸ ਪਿਓਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਿਓਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡਸ ਹਨਾ, ਆਇਓਡਾਈਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੀ volatile halogen compounds have sweet smell। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਨੇ ਕਲਰਲੈਸ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਆਇਓਡਾਈਡ ਕਲਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੈਲੋਜਨ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੀਟ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਥਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ CH3Cl, ਮਿਥਾਈਲ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ CH3Br, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। ठीक है, फिर कुछ क्लोरो मीथेन दी, है ना। ठीक है, ये सारे के सारे गैशियस ने एट रूम टेम्परेचर। ऑल दीज आर गैशियस एट रूम टेम्परेचर। ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਮੈਂਬਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਸੋਲਿਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਕਲੋਰੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਫਲੋਰੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਚੇਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਵਧਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਚੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਚ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਲਿਆ। ਆ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਆ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ 1 ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ 2 ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਤਾਂ 1 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 2 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਚ ਬਣੂਗੀ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਔਰਥੋ ਮੈਟਾ ਪੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ OMP, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਟਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਭਗ 256, 249, 323, 453, 446, 448। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਥੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਜੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗੇਨ 3 1 2, ਕਲੀਅਰ। 3 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੈਨ 1 ਦੈਨ 2, ਕਲੀਅਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਦੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਹਨਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋल्यूबिलिटी ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਈਟਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਚ ਘੱਟ ਘੁਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੌਂਡਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਟ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚ ਘੱਟ ਘੁਲਦੇ ਆ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ
ऑफ हेलो एल्केन। बच्चे तीन तरह की पढ़ांगे आप। नंबर वन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। जेड़े जेड़े मैं पॉइंट्स लिखवा रहे हैं नाल नाल इन्हां नूं नोट करना है भी। ठीक है, तो मैं फिर कह रहा ऑर्गेनिक ਨੂੰ किसी एक बुक तो पढ़ना है। आइदर ਤੁਸੀਂ BSc ਦੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ बुक फॉलो कर सकते हो या +2 ਦੀ मॉडर्न्स फॉलो कर सकते हो। ठीक है, या +2 ਦੀ NCERT ਦੀ भी हेल्प ले सकते हो। एलिमिनेशन रिएक्शन। नंबर थर्ड, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल। तीन तरह की रिएक्शन। सब तो पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कि एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, वो अपने को इत्थे एक अगेन CX प्रेजेंट सी, हेलो अल्केन प्रेजेंट सी, सबनों पता है। हैलोजन ते चार नेगेटिव है, पॉजिटिव इनेक्टिव वाला पॉजिटिव ते अटैक कर जाएगा। ये अटैक कर जाएगा तो एक दो तीन न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, हैलोजन अलग हो जाएगा। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो मैं एक होर पॉइंट कहना चाहना भी अपने को जिमें एक पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਗਾ एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। सर एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स केड़े होंगे है जी? एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स पुत्रों, ठीक है, वो होंगे है जी, ये वो होते हैं, ठीक है, हिंदी पंजाबी दोनों में चलने देंगे ना, जो दोनों तरफ से अटैक कर सके। जैसे साइनाइड है, उसका N भी नेगेटिव होता है, या आप NC ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, साइनाइड आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये एम्बीडेंट लिगेंड्स है, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। क्लियर है ना बात? अगला, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1, ठीक है सर, बेसिकली SN1 है तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। ठीक है, सारे के बारे में पढ़ाऊंगा एक डिफरेंस की फॉर्म में। 2 स्टेप मैकेनिज्म, ये 2 है तो ये 1 स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है जी, 2 है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा जी, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक के मैकेनिज्म्स करवा रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करेगा, एक फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। ठीक है, अब मैं एक और बात करूंगा कि जो 2 है तो उसके 2 स्टेप्स आप बना के दिखाएं। 2 है तो उसके रिएक्शन हुई कैसे, क्या होता है। तो ये देखिएगा, ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन और एक यहाँ क्लोरीन। OH नेगेटिव यहाँ पे जब अटैक करेगा, ठीक है, जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो ये एक देखिए ट्रांजिशन स्टेट तैयार करवा देगा। डेल्टा नेगेटिव कार्बन, ये ट्रांजिशन स्टेट तैयार करवा देगा। ठीक है, इसके बाद OH, CH, H+Cl नेगेटिव। ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसी हो जाए तो देख सकते हैं भी। इसमें ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। और ये अपन देखेंगे कि पहले हाइड्रोजन इस तरफ थे, ठीक है, इसमें बाद में राइट तरफ, पहले लेफ्ट तरफ थे अब राइट तरफ हो गए। जैसे छतरी खुलती है ना, ऐसे छतरी होती है, बाद में ऐसी होगी। तो इसके अंदर छतरी खुल गई तो इसके अंदर बोल सकते हैं कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म था। ट्रांजिशन स्टेट होती है किसके अंदर? SN2 के अंदर। और इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है जी, ठीक है, छतरी खुल गई जी। क्या बात समझ आई? SN1 का थोड़ा अपन देखते हैं। ठीक है, CH3 ट्राइस CBr, स्टेप 1, पहले ये कार्बोकैटायन तैयार हो जाएगा यहाँ पे, सर ब्रोमीन हो गया अलग। अगले स्टेप में
इसके साथ OH आयन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये स्टेप 2 है जी। सी CH3 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 OH, सारा सेम एक तरफ OH आ जाएगा, इसमें कोई भी इन्वर्जन नहीं हुई, जैसे पहले था वैसे इधर है, वैसे ही इधर है, कुछ नहीं हुआ। सर कोई इन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है, तो बोल सकते हैं रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस। सर ये रेसमाइजेशन क्या होता है, ये आगे आएगा। उसमें रेसमाइजेशन होती है, रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस। कोई इन्वर्जन नहीं हुई, इसमें रेसमाइजेशन होती है। क्या बात समझ आई? क्या बात क्लियर है ना? तो मैं अगर स्टेबिलिटी की बात करूंगा, तो स्टेबिलिटी अगर मैं SN2 की बात करूं, ठीक है, तो SN2 की है CH3X ग्रेटर देन प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ठीक है, ये SN2 की है। SN2 की स्टेबिलिटी। SN1 की बात करूंगा, इसकी रिवर्स है, इसका टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन CH3X। सर ऐसा क्यों, इसमें टर्शरी क्यों स्टेबल है? क्योंकि आपको पता है, ठीक है, आप पहले मैं SN2 की तरफ ले जाता हूँ कि SN2 में प्राइमरी क्यों स्टेबल होगा, मतलब इसके अंदर OH आयन अटैक करना है। तो जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स होंगे, मिथाइल ग्रुप बल्कि मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, तो SN2 अगर आएगा तो OH आयन इसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप मोटे होते हैं, जगह बड़ी लेते हैं। तो इसीलिए SN2 में जितने मिथाइल कम होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वेयर एज इफ वी कंसीडर SN1, है ना, अगर SN1 देखेंगे तो SN1 में पॉजिटिव बनना है सबसे पहले। तो पॉजिटिव के लिए जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे, उतना जल्दी नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन दे के बाहर फेंक दोगे। इसीलिए SN1 में टर्शरी स्टेबल है सबसे ज्यादा, SN2 में, ठीक है, मिथाइल ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आई थिंक आपको SN1 SN2 बहुत इजीली बड़ा अच्छा समझ आया हो। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। एक और होता है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी अपन स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में अगर अपन देखें, है ना, तो ये एक बहुत इजी कंसेप्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट है, इसको अपन कैसे देखेंगे? ठीक है, इसको थोड़ा अपन अगर संभाल के देखें भी, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑप्टिकल एक्टिविटी या रिटेंशन इन्वर्जन की बात है, तो ध्यान देंगे हमारे पास एक वर्ड होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, जैसे ये देखो, ये एक लाइट है, लाइट की डायरेक्शन हर तरफ होती है, बट अगर मैं सारे पोर्शन काट दूं, सिर्फ लाइट को एक डायरेक्शन में रख दूं, देखो वाई एक्सिस में रख दिया, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। नॉर्मल लाइट थी जो हर डायरेक्शन में थी, जो एक ही डायरेक्शन है XY Z किसी में भी, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। सर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब मैं, ठीक है, बेसिकली सबसे पहले तो सर ये बनेगी कैसे, नॉर्मल लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सर निकॉल प्रिज्म से पास कराना होता है, निकॉल प्रिज्म। ठीक है, तो इसको जब मैं, ठीक है, किसी भी एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास कराऊंगा, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करवाया, ठीक है, और उसके बाद मैंने एक आगे एक पोलैरीमीटर लगाया है, ठीक है, दोबारा एक प्लेन पोलराइज लाइट बनाई, कैसे, नॉर्मल लाइट को निकॉल प्रिज्म से पास करवा के, उसके बाद उसको मैंने चेक करवाया कि किसी भी एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पास करवाया, बाद में आगे लगाया एक पोलैरीमीटर। ठीक है, अगर जो अपने पास लाइट है वो रोटेट होगी, रोटेट, ठीक है, अगर लाइट रोटेट होगी, ठीक है, ध्यान देंगे, क्लॉकवाइज होगी तो पॉजिटिव साइन होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो नेगेटिव होगी। जैसे लाइट ऐसे घूम रही थी, वो लाइट बाद में ऐसे मिल गई तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। ठीक है, अगर लाइट क्लॉकवाइज घूम गई तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज घूम गई तो उसको बोलते हैं लीवो। क्लियर हुआ डेक्स्ट्रो और लीवो कंसेप्ट? क्लॉकवाइज घूम गई तो दैट्स नोन एज डेक्स्ट्रो, एंड एंटी क्लॉकवाइज घूम गई तो उसको बोलते हैं लीवो। और ये डेक्स्ट्रो और लीवो,
ठीक है। डेक्स्ट्रो और लीवो बेसिकली इन्हें बोलते हैं इनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। ठीक है। 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो, मिक्सचर बनाया, खिचड़ी बनाई। दैट्स नोन एज रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। इस सारे काम को करने को क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेसमाइजेशन। क्लियर है बात? ठीक है। दैट्स नोन एज रेसमाइजेशन। ये रिटेंशन, दो वर्ड्स और आते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन। याद है मैंने आपको अभी बताया था कि ये देखो, जिसने छतरी खुल गई थी, SN2 के अंदर, SN2 के अंदर ये एच लेफ्ट साइड थे, बाद में राइट हो गई, इसमें इन्वर्ट होगी सारी की सारी। बट SN1 में, ठीक है, देखो पहले जैसे शक्ल थी लास्ट में वैसी ही है। तो बेसिकली SN अपन बात कर सकते हैं कि रिटेंशन मतलब रिटेन रहना, मतलब जो जैसे पहली स्ट्रक्चर थी रिएक्शन होने के बाद भी सेम ही रहे। इन्वर्जन रिवर्ट हो जाना, उल्टी हो जाना। अम्ब्रेला इन स्ट्रॉन्ग विंड, अम्ब्रेला बड़ी सारी जब बाढ़ बाढ़ आ रही होती है, बड़ी ज्यादा विंड चल रही होती है तो घूम जाती है ना। तो ये इन्वर्जन वाली कहानी है। ठीक है। क्लियर हुई बात? समझ आई? एक वर्ड आता है कायरल। ये देखो, अल्फाबेट लिखा मैंने ए, मिरर लगाऊंगा यही बनता है। ए लिखा बी, मिरर लगाया, इसकी शक्ल ऐसी आ जाएगी। ठीक है। तो इस शेप को इसके ऊपर रखूंगा सर, सुपर इम्पोज कर जाएगी, ये कायरल नहीं है। इसको इसके ऊपर रखूंगा तो सुपर इम्पोज, ठीक है, बेसिकली नहीं करेगी, सुपर इम्पोज नहीं करेगी, कायरल। तो कायरल वर्ड होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस के लिए। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज के लिए आप किसी भी चीज को कायरल तब कह सकते हैं इफ इट हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। दोबारा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या ये बात समझ आई सबको? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। और हो गया तो सेंड मी यस इन द चैट बॉक्स। ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, तो यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है। आज ही कोशिश करूंगा एक और वीडियो पुट कर दूंगा, वैसे तो मैंने सोचा था कि आज के सेशन में खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं। आज ही एक और वीडियो पुट कर दूंगा ताकि अपन आज अपना हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स खत्म कर दें। वी आर ट्राइंग कि अपना जो सिलेबस है मैक्स टू मैक्स, अब भी बहुत महीने हो गए हैं सिलेबस चलते हुए, अब एक ट्रैक पे, जिसमें मैं बीमार भी हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है। तो ये मार्च का स्टार्ट हुआ हुआ है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर, इट्स अबाउट 7th मंथ। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी बस आप ये जो सितंबर है, ठीक है, सितंबर सितंबर में अपना चांसेस करेंगे कि अपना सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। इजी पोर्शन है, ऑर्गेनिक में आपके एफर्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन रिवाइज करनी और प्रैक्टिस करनी ज़्यादा रहेगी। समझाने की तरफ मैं चीज़ें लेके जाऊंगा, बट आप रिवाइज और प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।